बरकत और तमाम नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ो खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शे। आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको खूबसूरत दिन दिया, रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। आए मेरे अज़ीज़ो, आज के कलाम से हम सीखेंगे ज़बूर की किताब 141 बाब। पहली आयत से हम चंद आयत पर गौर करेंगे। दाऊद का मज़मून है, ऐ खुदावंद, मैंने तेरी हुज़ूर दुहाई दी, मेरी तरफ जल्द आ। जब मैंने तुझसे दुआ की तो मेरी आवाज़ पर कान लगा। मेरे दुआ तेरे हुज़ूर बखूर की मानत हो। मेरे हाथ उठाने की शाम की कुर्बानी की माने। ऐ खुदावंद, मेरा मुंह पर पैरा उठा, मेरे होंठों लबों के दरवाज़ा पर निगहबानी कर। मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ माइल ना होने दें कि बिदकारों के साथ मिलकर हुए कामों में मसरूफ हो जाऊं और मुझे उनके लजीज खानों से बाज रख। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत तो। मेरे अज़ीज़ों, आज एक ही मज़मून है और एक ही बात को हम याद दिलाएंगे। दाऊद क्या फरमाता है? ऐ खुदा, मेरी दुआ पर अपना कान लगा। जब दुआ करते हैं तो दुआ के वसीला हमारे सोच, हमारे इरादे, हमारे ख्याल, हमारा मशवरा और बहुत सारे फर्के होते हैं और उनकी तरफ हम माइल जल्दी होते हैं, क्योंकि गुनाह जो है वो इंसान की ज़िंदगी के अंदर पहले दिन से था और आज भी इब्लीस जो है वो इंसान को गुमराह करता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, दुआ उस आदमी के खुदा की तरफ पहुंचती है जो अपनी ज़िंदगी को बदल लेता है और जो अपनी ज़िंदगी के अंदर होंठों को कंट्रोल करता है, क्योंकि होंठों के इवाज़ खुदा का बंदा दाऊद लिख रहा है, मेरे होंठों की निगहबानी कर, मेरे मुंह पर पैरा बिठा, ताकि मेरे मुंह से कोई ऐसी चीज़, ऐसी बात ना निकले और मेरे होंठों के दरवाज़ा पर निगहबानी कर। क्योंकि खुदा अपने लोगों के अंदर वो कंट्रोल, वो मकसद रख देता है, ताकि वो लोग डरते हैं कि खुदा मेरी बात से नाराज़ ना हो। क्योंकि जो खुदा को नाराज़ कर देते हैं वो खुदा की बारगाह में नहीं होते, वो खुदा की हाज़िरी में नहीं होते,
وہ خدا کو اپنی زندگی کے اندر قبول نہیں کرتے، وہ خدا کی بادشاہی کو قبول نہیں کرتے۔ آج ہمیں ضرورت ہے اپنے ہونٹوں پر غور کریں۔ کل کا کلام جو میں نے کیا تھا اس میں بھی خدا کا بندہ داؤد لکھ رہا تھا کہ جب بنی نوع انسان اپنی زندگی کے بارے میں غور کرے گا، توجہ کرے گا، مکر کی باتیں نہ کرے گا، تو پھر خدا اس کی آواز کو سنے گا اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ مکر کی باتوں سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اور گناہ سے، زناکاری سے، برے کاموں سے باز رکھنا، اپنی زندگی کو خدا کی تابع کرنا ہے۔ جب تک اپنی زندگی کے اندر ہم غور نہیں کرتے، ہم فکر نہیں کرتے، ہم اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتے، ہونٹوں کو باز نہیں رکھتے، ہونٹوں پر غور نہیں کرتے، ہونٹوں کو جیسا بھی آگے چلنے دو نہیں۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، بات کرنے سے پہلے کیا کرو؟ سوچو، پھر اسے پرکھو، پھر اسے باہر نکالو۔ جب باہر نکالتے ہیں، سوچو، بولنے سے پہلے اس کو تول لو تاکہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان ہے۔ تو جو جلد بازی سے بات کو انڈیل کر دیتے ہیں، وہ خطا کرتے ہیں، وہ منافع نہیں بلکہ اس سے کسارہ لے لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کو کہہ دیتے ہیں لیکن منہ پر نہیں بلکہ بعد میں بھی کہہ دیتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ پیار کرتا ہے اور خدا کا کلام داؤد لکھ رہا ہے، جب میں شام کی طرح اپنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں، تو وہ قربانی کی مانند ہیں۔ اپنے آپ کی قربانی دینا، اپنے ہاتھوں کی قربانی دینا، اپنی آنکھوں کی قربانی دینا، اپنے دل کی قربانی دینا۔ جب ہم اپنے بدن کے اعضاء پر غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں برکت مل جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، خدا کی حضوری میں جھکنا، خدا کو قبول کرنا۔ جب اپنے ہاتھ خدا کی طرف بلند کرتے ہیں تو یقیناً خدا اپنے لوگوں پر ترس کرتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے آسمان کو کھول دیتا ہے، اپنے لوگوں کی دعا کو سن کر وہ قبول کرتا ہے اور دعا کا جواب دیتا ہے۔ داؤد فرماتا ہے، اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے میری دعا کو سنا اور تو نے مجھے جواب دیا۔ آج میرے عزیزو، خدا آپ کی دعا کا بھی جواب دینا چاہتا ہے، لیکن ہمارے اندر کی صفائی ہو تو جب اپنی زندگی کو گناہ سے یا مکر کی باتوں سے باز رکھیں گے تو تب آپ کی دعا آسمان پہ جائے گی اور تمہاری دعا جو ہے آسمان کے دریچوں کو کھول دے گی۔ میرے عزیزو، خدا کی کلام میں لکھا ہے، جو کچھ تم زمین پر باندھو آسمان پر باندھ دیا جائے گا، جو کچھ آسمان پر باندھو زمین پر باندھ دیا جائے گا۔ بنی نوع انسان کو خدا نے اختیار دیا، اتنا بڑا اختیار، اتنا بڑا اختیار بنی نوع انسان کو۔ جب
अपने होंठों को मकर की बातों से बात रखेगा, जब अपने होंठों पर खुदा के पाक फरिश्तों का पहरा लगा लेगा, ताकि अपने होंठों पर गौर करे, क्या मेरे होंठों से बदी की बातें तो नहीं निकलती, मेरे होंठों से बुरी बातें तो नहीं निकलती। और खुदा का बंदा दाऊद लिख रहा है, ऐ खुदावन मेरे दिल को बुरी बातों से, बुरे लोगों से बचा, ताकि मैं उनके साथ मुलव्वस होकर बुरे खाने, लजीज खाने न खाऊं। ऐ मेरे लोगों, आज खुदा कितना आपको प्यार करता है। और दाऊद मेरे और आपके लिए बुजुर्ग बादशाह, जिसने हमको आगाह कर रहा है, ताकि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी जिंदगी को बदलें, अपनी इरादा को बदलें, अपनी सोच को बदलें, अपने होंठों को पाक करें, अपने बदन को पाक करें, अपनी आंखों को पाक करें। और जब अपने आप को पाक कर लेते हैं, तब्दील कर लेते हैं, इरादा को बदल लेते हैं, मशवरा ले लेते हैं, इससे लोगों से नहीं बल्कि खुदा से। ये खुदा का कलाम जो है, ये हमें मशवरा देने के लिए दलेरी करता है, फकर है, उससे मशवरा लें। जैसा कि दाऊद फरमाता है, तेरा कलाम मेरी राहों के लिए रोशनी है और कदमों के लिए सुराग है। जब खुदा के कलाम से मशवरा लेंगे तो यकीनन आपको बहाली मिलेगी, आपको कुव्वत मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी, आपके होंठ नापाक नहीं होंगे, आपका बदन नापाक नहीं होगा, आप खुदा की हजूरी में बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। जब आप खुदा के लिए इज्जत और जलाल के बारे में सोच लेंगे तो खुदा आपकी रहनुमाई करेगा। खुदा के साथ दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर, आज हमने अपने होंठों को बदी से बाज रखना है। अपनी जिंदगी के अंदर अपने मुंह पर खुदा के पाक फरिश्तों का पहरा बैठाना है। गौर करें, जब बुरी बात को नहीं निकालेंगे तो आपके मुंह पर पाक फरिश्ते मौजूद होंगे। जब उसका हम डर रख लेते हैं, जब खौफ रख लेते हैं, जब अपनी जिंदगी के अंदर उसको कबूल कर लेते हैं, तो फिर हम बुरी बातें, बुरे मशवरे, बुरे इरादे, बुरे ख्याल, बुरे लोगों के साथ उठना बैठना तर्क कर देते हैं। मेरे अज़ीज़ों, पौलुस रसूल बुरे लोगों में जाकर बैठता था, लेकिन उन जैसे काम नहीं करता था, उनको तब्दील करता था। और मेरे अज़ीज़ों, आज हमें भी बुरे लोगों में, नशेबाजों में, दगाबाजों में, ज़िनाकारों में, बुत परस्तों में जाना है, उनकी जिंदगी को बदलना है, उनके ख्यालों को बदलना है, चौकों में जाकर मुनादी करनी है और जगह जगह पे जाकर यीशु के नाम को जलाल देना है, क्योंकि वक्त बुरा आ चुका है। वक्त नहीं बुरा, लेकिन बनिनो इंसान के ख्याल बुरे हैं। जब ख्याल बुरे होते हैं तो उनकी मुसीबत उन पर आ पड़ती है, तो फिर कह देते हैं ये खुदा की मर्जी थी। खुदा की मर्जी अच्छे कामों के लिए, अच्छे किरदार के लिए, अच्छे उसके जलाल के लिए, अच्छी उसकी कुदरत के लिए, उसके लिए हम याद नहीं करते। जब हमारे साथ ऐसा सलूक होता है तो फिर कहते हैं खुदा की मर्जी थी। हालेलुया। आज हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें, ख्याल करें, फिक्र करें, ताकि खुदा का जलाल आपके साथ होगा। अपने होंठों को पर निगहबानी के लिए खुदा का डर, खुदा का खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रखें,
ताकि मेरे होंठों से कोई ऐसी बात ना निकले जिसके वसीला दूसरों के जिंदगी पर बोझ पड़े। जब अपने आप को तैयार करेंगे तो अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को जलाल देंगे। मेरे अज़ीज़ों, इसलिए नहीं खुदा ने भेजा कि ये गुनाह करें, मकर की बातें करें, ज़नाकारी, बुत परस्ती, नशाबाजी करें तो खुदा से दूर होते जाएं। खुदा ने हमें इसलिए रखा है ताकि खुदा की हजूरी में बढ़ें, अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे करें, अपनी जिंदगी के अंदर तौबा करें, गुनाह से बाज आ जाएं, मकर की बातों से बाज आ जाएं और खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करके खुदा को दावत दें, ऐ खुदावन मेरा दिल तेरे लिए है, मेरे दिल की तख्ती तेरे लिए है, ताकि मैं तेरे कलाम को अपने दिल की तख्ती पर लिख सकूं। मेरे अज़ीज़ों, एक वक्त आएगा, उस वक्त कलाम हमें नहीं मिलेगा। आज भी बहुत सारे लोग कलाम को तरसते हैं, उनके पास कलाम नहीं पहुंचता। बहुत सारी जगह पे कलाम लेकर खादिम घूमते हैं, लेकिन उनको कलाम को कबूल नहीं करते। आज हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें, ख्याल करें, गौर करें, फिक्र करें और खुदा की हजूरी में झुक जाएं और अपने होंठों को अपने मुंह पर पैरा बैठाएं और अपने होंठों से कोई ऐसी बात न करें जिसके वसीला खुदा को हम मायूस करते हैं, बार बार उसे दुख देते हैं, यीशु मसीह को बार बार मसलूब करते हैं। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम पढ़े और सुनने चाहने पर खुदा की बरकतों दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, फाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। आप आसमानी अपनी पाक को भेज, अपने जलाल को जाहिर कर, अपनी कुदरत, अपना जोर बख्शते। आज का कलाम मेरे और मेरे घराने के लिए, सुनने वाले लोगों के लिए, आस पास पड़ोसियों के लिए, बाप आसमानी अपने लोगों को बरकत दे। बाप आसमानी मेरी जिंदगी को बहाल कर बाबा बाबा की यीशु, जैसे कि तेरा बंदा दाऊद कह रहा है कि बाप तुम मेरे होंठों पर निगहबान बैठा, मेरे मुंह पर पैरा लगा। बाप आसमानी मेरे बदन को, मेरी जिंदगी को तब्दील कर, ताकि खुदावन मैं और ज़्यादा तुझ में आकर, तेरी हजूरी में आकर तेरे जलाल को जाहिर करूं, तेरे नाम की गवाही दूं, तेरे नाम का प्रचार करूं। बाप आसमानी जो मुझ में कमी है, कमजोरी है, यीशु मैं तेरे नाम के वसीला उन कमजोरियों पर गालिब आ सकूं और यीशु मैं अपनी जिंदगी को, अपने हाथों को, अपनी आंखों को, बदन के एक एक अज़ा को तेरे ताबा करूं, ताकि तू मेरा खुदा है, तू मेरा मालिक है, तू मेरी नाजात है, तू निजात का मंबा है, तू हमें बरकत देने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बाप आसमानी कौमों कबीलों के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार। हालेलुया। बादशाह के खुदा, हाकिमों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बनिनो इंसान के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ओ खुदावन, तूने हर चीज पर अपना कंट्रोल रखा और बाप तुम मेरे हाथों पर भी अपना कंट्रोल रख, बदन के अज़ा पर अपना कंट्रोल रख, ताकि खुदावन मैं तेरी तरफ माइल हो सकूं, तेरे अजीम नाम को इज्जत और जलाल दे सकूं। बाप आसमानी मैं आसमान की बादशाही की तरफ लौट सकूं,
ताकि आसमान की बादशाही का वारिस तूने मुझे बनाया। मैं चाहता हूँ जो लोग इस दुआ को सुने, जो लोग तेरे कलाम की तरफ माइल हों, वो आसमान की बादशाह के वारिस हों, क्योंकि इसीलिए तूने हमें भेजा है कि आसमान के बादशाह के वारिस बने। हालेलुया। हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए। बाप आसमानी तो मेरे घर घराने के साथ हो, बीवी बच्चों के साथ हो। बाप आसमानी मैं शुक्र गुजार हूँ कि तूने मुझे प्यार किया। मैं तेरे प्यार का कैसे शुक्र अदा करूँ। बाप आसमानी जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ वो कम है। बाप आसमानी जब मैं अपनी जिंदगी के अंदर गौर करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे शुक्र गुजारी और जितनी भी करूँ वो कम है। बाप आसमानी हर वक्त तेरे लिए मेरे हाथ चलते रहे, तेरे लिए मेरी जिंदगी से तेरा जलाल निकले और अबलीस का सामना कर सकूं, अबलीस के साथ जंग कर सकूं और अबलीस के मंसूबों को तेरे नाम के वसीला भस्म कर सकूं और तेरा नाम जलाल पाए। यीशु तुम बड़े हम घटें और तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें, तेरे नाम को इज्जत दें। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। आप आसमानी आज की सारी मीटिंग के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बाप आसमानी कौमों कबीलों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। दुनिया जहान के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। बाप आसमानी इस मुल्क के लिए तेरी सलामती चाहता हूँ, मुल्क के हाकिमों के लिए तेरी सलामती चाहता हूँ, मुल्क की कबीना के लिए तेरी सलामती चाहता हूँ। बाप आसमानी तमाम पासबानों के लिए तेरी सलामती चाहता हूँ, तमाम चर्च पर तेरी सलामती चाहता हूँ। बाप आसमानी जिन खादमों के साथ मिलकर मैंने तेरे हुजूर वादा किया उनके लिए दुआ करता हूँ। बाप आसमानी उस टीम को और खादमों को, उस चर्च को, आसमान को खोल, बरकत दे। उनकी बहाली, उनकी ताकत, उनकी कवत तेरे पास है और खुदावन को अपना हाथ बढ़ा, उनको अपनी पाकरू से ब्लेस कर, बरकत दे, कवत दे, जोर दे, ताकि दुनिया के कोने कोने तक तेरे कलाम खुदा को पहुंचा सकें, तेरे कलाम खुदा की अगुवाही दे सकें, तेरे कलाम खुदा के दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं और तेरे नाम को जला दें। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदलिया के साथ रहना, ताकि बड़ी दानाई के साथ वो फैसले करें, तेरे नाम को सारा जलाल मिले। बाप आसमानी मैं उन बीमारों को तेरे मसीबत पर लाता हूँ जिन बीमारों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। बाप आसमानी उनको खुशी बख्श देता है, उनकी खुशी के ऊंचे दिन उनको दिखाता है। बाप आसमानी मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। हालेलुया। यीशु नासरी मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, अपनी पात्र को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा, तमाम बुरे मंसूबों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। हालेलुया। गुलाम मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। यीशु तुझ में बने, तेरा बदन बने और तेरे नाम की जय जय करें। बाप आसमानी जिन बेटियों के घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्र गुजारी करें। और बाप आसमानी उन जिंदगियों को बहाल कर बरकत दे। हालेलुया। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा, मेरे जो चर्च के टीम है उनके साथ साथ रहना,
जो मसीह पेट पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ रहना, उनकी रहनुमाई करना, उनकी हिफाजत करना, बरकत देना, कौमों कबीलों में दुनिया में जाकर तेरी मुनादी करें, तेरे नाम को जलाल दें और वापस मानी एक एक जिंदगी को बहाल कर दें। जो मसीह पेट पर नहीं आ रहे उनकी जिंदगियों को बदल, इरादों को बदल, ख्यालों को बदल, उनके शौक तेरी तरफ बढ़े और सारा जलाल तुझे मिले। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमा नाम में आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों आज हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कासर में मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात मुतसिम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे आमीन आमीन।